Welcome back. So after the interruption, let's continue. So as you can see, the problem, I'll just have a quick recap. The problem was there is a ISMB 500 I section beam and there is a C section beam are used as a combination for a girder. They are used together, they are welded together as shown in figure. The dimensions for I section and the C sections are given, and the properties also given, like area of cross section, the inertia, and all those things. You have to find out the total moment of resistance they are supporting is 203 kilonewton meter. You have to find out the maximum bending stresses which are going to come on this. Okay, assuming that it is a sagging bending moment. So abhi sagging bending moment hai, to humne what we have done here, position of neutral axis we have calculated. So to find out this position of neutral axis, what we have done, so you can see we have calculated the new centroid of the entire cross section considering C and I both together. So we have used a simple formula A1y1 plus A2y2 upon A1 plus A2, right? And A1 is the area of I section given. Y is the centroid of I section. The centroid of I section will be symmetric. So therefore the total overall depth of the I section is 500. So therefore centroid is 250. Now C ka jo centroid hai, that is given as 23 millimeter below this top flange, top web. So therefore what we have done, we have started counting from here. We know up to here it is 500 plus 7.1 will give me over here, and minus of 23 will give me exactly this point. So that is why I have done this 500 plus 7.1 minus 23. Okay. Okay. So can you tell how the 23? So 23 कैसा आया बता सकते हो 23? It's given here. Huh? What is 23? When the C section was given like this, इसका जो centroid है वो यहाँ से 23 पे दिया है हमें. This is meaning of CYY. Okay. Are you understanding it? Yes sir. ये जो C section दिया है इसका कहीं पे centroid होगा ना यहाँ पे, तो उसका distance यहाँ पे दिया है 23. So that we have used. Sir, अगर thickness of web 7.1 mm दी है, then CYY shouldn't it be 2.3 or 23 mm would be okay sir. Sorry, I'm missing. अरे इसका बाकी का पार्ट भी है ना इधर. Understood ना? या ऐसा होता okay, sir, yes, है centroid, अभी इधर भी है ना, तो centroid इधर ही आएगा ना. Okay sir, yes. वो डायरेक्टली दिया है हमें, उसको कुछ करने की जरूरत. Okay, so we have calculated 310.6 as the centroid. Now we were finding out the inertia. So let us find out the inertia now. So inertia for I section, it will be about Ixx which is given to us, and that we will just shift it to this required axis. So how much we are going to shift? तो इसका जो location था, इसका location 310 पे, ठीक है, and this was at 250, तो मुझे यहाँ पे shift करना पड़ेगा, ठीक है, वो D में find करूँगा. और इसके ऊपर वाले, अभी इसके लिए देखो, इसके लिए कौन सा inertia दिया है, मतलब ये वाला Ixx है कि Iyy है, nothing is given. तो how you will come to know कि Ixx कौन सा है और Iyy कौन सा है. ठीक है, आई सेक्शन तो सिमेट्रिक वैसे खड़ा है, बट सी सेक्शन तो जनरली ऐसा होता है ना. तो अगर सी की मैं बात करूंगा तो ये हो गया मेरा आई एक्स एक्स और ये हो गया मेरा आई वाई वाई. ना हाउ विल आई कम टू नो कि इसमें से आई एक्स एक्स कौन सा और आई वाई कौन सा है? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ यू विल कम टू नो? यस, सर उसकी वैल्यू से मालूम पड़ेगा, जो ज्यादा है वो हॉरिजॉन्टल लेंगे, वर्टिकल लेंगे, और जो कम रहेगा वो हॉरिजॉन्टल लेंगे. मतलब उसको अगर रोटेट करेंगे तो इनर्शिया ज्यादा आएगा ना पर्टिकुलर एक्सिस पे. किसका इनर्शिया ज्यादा आएगा? अगर समझ तो सर ये वाला जो सी है जो नीचे बनाया है आपने, उसका को हॉरिजॉन्टली अगर रोटेट करेंगे तो ज्यादा आएगा वैल्यू. विद रिस्पेक्ट टू दिस आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, तो ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई कितना बड़ा रहना चाहिए? आई एक्स एक्स बड़ा रहेगा. आई एक्स बड़ा रहना चाहिए. बट ये केस में हमारा जो बीम है अभी ये वाला एक्सिस पे रोटेट ही नहीं कर रहा है. इट इज सॉरी, हाँ, हमारा ये एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है, बराबर ना? हाँ. द सेक्शन इज रोटेटिंग अबाउट नॉट अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बिकॉज़ वी हैव केप्ट इट दिस वे. तो हमारा इनर्शिया, हमारा एक्सिस देखो ये वाला है ना. न्यूट्रल एक्सिस किधर है? विद रिस्पेक्ट टू सी अगर मैंने न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ किया तो इधर है कि नहीं? तो व्हिच एक्सिस आई शुड टेक, वेदर आई शुड टेक आई एक्स एक्स और वाई वाई? Question?
Did you understand my question? ये सी अभी हमारा, ये देखो जब मैं सी सेक्शन की बात करता हूँ और ये जो स्टैंडर्ड डायमेंशन दिया है, ये वो लोग ने ऐसा अज्यूम करके दिया है कि सी ऐसा होना चाहिए, बट अभी मैंने सी को इन्वर्ट करके यूज किया है, बराबर ना? तो अगर जब सी ऐसा लिखता हूँ मैं, तो ये उसका एक्स एक्सिस है और ये उसका वाई एक्सिस है, और मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है देखो विथ रिस्पेक्ट टू सी इधर है ना, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है विथ रिस्पेक्ट टू सी. सो देयरफॉर अभी अगर मुझे ये एक्सिस पे यहाँ पे शिफ्ट करना है तो आई हैव टू यूज वाई वाई वैल्यू, नॉट एक्स एक्स वैल्यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझा? यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू यूज करूंगा? आई वाई वाई फॉर सी एंड दैट आई विल शिफ्ट बाय एडी स्क्वायर फॉर्मूला. अंडरस्टूड? Or do you want me to give any further explanation? Sir, repetition. Understood? Okay, so this was just for understanding purpose. कि I y क्यों लिया, नहीं x x क्यों नहीं लिया. Now this is so many other data is given ना, बाकी उसका कोई यूज नहीं हमें. जैसे कि यहाँ पे ये I y कोई ये वाला I y का कोई यूज नहीं था. This was not used in our calculation. Here we are not going to use this I x x. We are going to use I y because the C is inverted. Okay, C has inverted and therefore we are going to use I y. So I y अभी use करके हमें यहाँ पे calculation करना है. See here how I am writing. Now I x x for I section is known to me. How much it is? 45218.3 into 10 raised to 4 plus area of the I is 11074 into distance. Now see here, यहाँ से लेके यहाँ तक का distance कितना रहेगा? ये पोजीशन है 310 और ये पोजीशन है 250. You can see here मैंने यहाँ पे लिखा है और ये फाइनल पोजीशन है 210. हमें क्या करना पड़ेगा? 310.6 minus 250 the whole square. Now this is we have written this entire bracket is for only I section plus now for C section we will take I y y 219.1 into 10 raised to 4 into the area is 3867 into the distance is how much is the distance? Now see here इसका y position कहाँ पे था? इधर था ना 500 plus 77.1 ये कितना रहेगा? 507.1 minus 23 करेंगे तो कितना आएगा? बताओ. $484.1. Yes, 484.1. So this is 484.1 था 0.1 माइनस उसमें से कितना करना पड़ेगा? 310.6. Are you understanding it? ये देखो ये लिखना सिंपल हो जाता है. जो तुमने y बार निकाला है ना उसका जो y कोऑर्डिनेट लो और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करो. तुमने कैसे भी किया, छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू आर स्क्वेयरिंग इट. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि तुम उसमें क्या माइनस करो. ठीक है, इसका आंसर बताओ अभी. दैट इज योर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. Give me the value. सर 10⁴ का प्लस आएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन डाला है. हाँ सर. हाँ बोलो, कोई तो बोल रहा था 10⁴. सर उधर प्लस आएगा 10⁴ के बाद, अपने मल्टीप्लिकेशन साइन डाला है. अच्छा ओके, सॉरी सॉरी. यस, नेक्स्ट. और कोई आंसर बताओ, आंसर. अभी तक कैलकुलेट नहीं किया? चलो फटाफट करो.
61.14. 60 1.14 into 10⁻⁷. 7. Okay. Now see here we have got the inertia as well. Now what they are asking you to find out maximum stress. तो अभी देखो सिग्मा C और सिग्मा T हमें पता है सैगिंग है, तो we know that सिग्मा C मैक्सिमम, अगर मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मोमेंट डिवाइडेड बाय इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इनटू YC maximum. What is your moment? 203. देखो किलो न्यूटन मीटर है तो यू विल हैव टू राइट डाउन 10⁶ बिकॉज वो न्यूटन मीटर में चाहिए, न्यूटन मिलीमीटर में चाहिए, राइट? अपॉन इनर्शिया इज 61.14 into 10⁷ into your y maximum is YC maximum. See here YC मतलब ये वैल्यू, राइट? So 196.5 एंड सॉरी अपॉन में कुछ नहीं है. तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट सम आंसर इन MPa. And similarly you will write down for sigma T maximum or tensile value, that is your again M divided by I neutral axis ka into Y T maximum. So your moment is same 203 10⁶ upon 61.14 10⁷ into YT maximum is 310.6. Now give me the values. Yes. तो सिग्मा C 65.24. सिग्मा C कितना आया? 65.24. And what about this? 103.12. 0.12. Got this? सबको समझ रहा है? Any doubt till now? अच्छा, can we draw the this one? Can we draw the bending stress variation? कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मैं ये ऐसे रेफरेंस लेके रखता हूँ, ठीक है? You can see this one. ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है? यहाँ पे कितना वैल्यू है? 65.24. So we'll take the value as 65.24 and the next value is 103.12. बराबर? So ये टेंसाइल वैल्यू है. Just join them passing through central point, right? This is your sigma C maximum. It will be like this. And so on. So this value is 103.12 and this value is 65.24. Okay, understood? Any doubt? So yeah, as we have understood this one, so we have understood now how to deal with simple single material problems, how they are how to calculate the resultant inertia, and then how to calculate the maximum stress and bending equation. That understood. Now the problem comes whenever we have multiple materials involved. So that type of beams we call flitch beams. Now you must have seen flitch beams का मतलब क्या? For example, we have a wooden plank. एक wooden plank है. तुमने ये बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं या फिर ओल्ड मैंशंस एंड एवरीवेयर. सो वहाँ पे जो कॉलम्स होते थे पहले वुडन कॉलम्स होते थे, वुडन बीम्स एंड वुडन कॉलम्स. But to strengthen that wooden portion, steel plates were attached. They were used to attach or bolted, riveted करके steel plates को attach कर देते थे. इससे फायदा क्या होता था? एक तो wood सस्ता है, ऊपर से wood का weakness है तो steel यूज करो, बट पूरा steel यूज करेंगे तो कॉस्ट बढ़ता है. तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते थे, wood यूज करेंगे बट उसके साथ हम लोग स्टील उसका reinforcement करेंगे या फिर फ्लिच करेंगे, बोल्ट या साइड से उसको स्क्रूड करेंगे, so that now my beam is made up of two materials. One is the basic material is wood or the timber, and the second one is the strengthening material which is metal, but उसका quantity कम है तो उसका cost कम हो जाता है. ओके तो चलो अभी मैं फ्लिच बीम के पास आते हैं हम लोग. See here now, flitch beams. Now you can see here there's a beam.
अभी ये बीम कैसा है, दिस इज अ वुडन जॉइस्ट, ये सेंट्रल पार्ट किसका है, वुडन पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट इज ऑफ वुडन जॉइस्ट एंड इट इज फ्लिच्ड, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे रिवेट लगा के बाजू में स्टील प्लेट्स ज्वाइन किया है, दीज आर व्हाट, दीज आर दी स्टील प्लेट्स, स्टील प्लेट्स या फिर इसको अभी अटैच कर दिया। तो स्टील प्लेट्स अटैच करने से क्या फायदा होगा, तो बेसिकली जो वुड मटेरियल है वो उतना बेंडिंग मोमेंट नहीं ले सकता, तो अभी ये स्टील प्लेट्स अटैच करने की वजह से बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स कि मतलब अभी इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंगल मटेरियल दो दो मटेरियल है, बट अभी प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई दो दो मटेरियल्स है तो हाउ विल आई कैलकुलेट, मतलब मेरे इक्वेशन में, तो इक्वेशन में कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि यू विल हैव टू डील विद टू मटेरियल्स, सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन ऐड इट, or else there is one method we can convert one material into the other material by proper conversion method, ठीक है, by proper conversion method। So steel plates were attached, wooden joist है, steel plates बाजू में attach किया। Now let us understand कि ये method कैसे work करेगा, how we can convert single into, now we know that when we are when the beam is flitched we know that कि whatever is the strain produced, अभी stress आता है मतलब strain आता है, strain मतलब तुम्हें पता है कि मटेरियल जब बेंड होता है तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, राइट, so that means whenever the material is stressed there will be strain involved and the strain must be same in both the materials, steel as well as wood, otherwise what will happen, otherwise the जो stick किया है या फिर जो flitching किया है it will vanish, मतलब वो जो नट बोल्ट्स या जो भी हमने रिवेटिंग एलिमेंट्स यूज किए वो सब टूट जाएंगे। So therefore the condition, the very first condition we should have is the flitch beams, they should be equally strained, मतलब जब स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो जितना स्ट्रेन स्टील में आएगा उतना ही स्ट्रेन वुड में भी आना चाहिए, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा, राइट ना। तो therefore the condition which will with which we can start is the strain is same in both the materials। ऐसे स्टार्ट करेंगे हम लोग कि strain is same in both the materials, so let us assume strain is same in both the materials। तो अभी both the materials का strain same है, मतलब कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, how will I write down, तो strain in wood is same as strain in steel, or rather you can write down the reverse way, बराबर। अभी देखो strain क्या होता है, तो basic meaning है strain is stress upon Young's modulus, so we know that that we have studied the Hooke's law, so therefore it is stress in steel upon Young's modulus for steel is equal to stress in wood upon Young's modulus for wood, right? So therefore now we know that there is a relation between these two, that the stress in steel is E for steel upon E for wood into sigma for wood। Now ये क्या है, ratio है, because these two are the constants, so this ratio we call it as m, this ratio we call it as m into sigma for wood, that is equal to sigma for steel, ठीक है। Now this m is also known as modular ratio, modular ratio, modular ratio, what do you mean by modular ratio, the modular ratio is the ratio of two Young's modulus, weaker material का Young's modulus से divide करने का, so you will get some modular ratio greater than 1, that is denoted by m। Now see here, अभी मुझे बताओ जो टोटल बेंडिंग स्ट्रेंथ रेजिस्ट करेगा, बेंडिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो बेंडिंग स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कितना मोमेंट वो रेजिस्ट कर सकता है बिफोर बेंडिंग, हाउ मच मोमेंट इट कैन रेजिस्ट, ठीक है। सो द रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट, लेट अस अज्यूम दैट लेट एम आर बी द रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट, ओके। अभी ये एम आर जो रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट है वो दोनों शेयर करेंगे, दोनों शेयर कौन कौन, मतलब दोनों मतलब स्टील भी शेयर करेगा, स्टील भी कुछ रेजिस्ट करेगा एंड वुड भी कुछ रेजिस्ट करेगा। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ये एम डब्ल्यू जो है इट इज रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट और द बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेड बाय वुड,
वुडन कॉलम या फिर वुडन बीम, बेंडिंग मोमेंट रजिस्टर्ड बाय बेंडिंग मोमेंट resisted by wood. Okay, and M W हो गया steel is the bending moment resisted by steel. Okay, अभी इतना एक सिंपल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है कि दो टोटल जो बेंडिंग मोमेंट है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है. So I can simply write down the resultant bending moment is nothing but bending moment resisted by steel plus bending moment resisted by wood. But I know the formula for bending moment. What is that formula? We know the formula sigma equal to sigma by y equal to m by I. बराबर हमारा फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? But we know that sigma by y is equal to m by I. This is what the formula we have studied. So what is m equal to? It is sigma by y into I. Now what is this I by y? It is also known as sigma by z, sigma into z, where z is the section modulus. Where z is the section modulus. Let us substitute that over here. So therefore what I am going to get is the resultant bending moment mr is equal to ms. ms मतलब क्या है? स्टील के लिए. स्टील के लिए क्या लिखूंगा मैं? तो स्टील के लिए सिग्मा फॉर स्टील इंटू z फॉर स्टील, राइट ना, इंटू z फॉर स्टील प्लस सिग्मा फॉर वुड इंटू z फॉर वुड. नाउ व्हाट इज z? So if you remember for rectangular section z क्या होता है? I upon y. Let us try to write down that. अभी सिग्मा स्टील के लिए ऐसे लिखता हूँ इंटू व्हाट इज z फॉर स्टील. ये स्टील का सेक्शन ये वाला है ना. अभी स्टील में दो सेक्शंस है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ये इसका इनर्शिया कितना आएगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस. नाउ यू नो दैट कि न्यूट्रल एक्सिस तो इसमें से जाने वाला है सेंट्रॉइड, राइट ना. दिस विल बी माय न्यूट्रल एक्सिस, बराबर. सो मुझे बताओ कि इनर्शिया क्या आएगा उसके वो एक्सिस पे. अभी देखो स्टील के लिए थिकनेस क्या है? स्टील के लिए द ब्रेड्थ इज t एंड द डेप्थ इज d. तो कैन आई राइट डाउन इट इज t d क्यूब बाय 12 अपॉन ये हो गया I. देखो z क्या है? I अपॉन y. y क्या होता है? तो y is the distance, so you can see here d by 2 is the y plus what is sigma w? I don't know, मतलब वो तो वैल्यू है इनटू z. z के लिए क्या है? वुड के लिए देखो डायमेंशंस क्या है? b और d है, तो मैं लिखता हूँ b d क्यूब by 12 एंड अपॉन y क्या है? d by 2 अगेन. So when you simplify this, what you are going to get? Sigma steel, बराबर. सिग्मा स्टील. नाउ सिग्मा स्टील का भी वैल्यू तुम्हें पता है. यू कैन सी हियर सिग्मा स्टील इज हाउ मच. लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर. सिग्मा स्टील इज m टाइम्स सिग्मा वुड, m टाइम्स सिग्मा वुड इनटू अभी इसको सिंपलीफाई करोगे ना, एक d कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 2t d स्क्वायर बाय 6 प्लस सिग्मा वुड इनटू यहाँ पे बचेगा b d स्क्वायर बाय 6. ओके अभी क्या करते हैं? ये दोनों में जो भी कॉमन चीजें हैं वो कॉमन निकालते हैं. जो भी कॉमन है वो कॉमन निकालते हैं. तो रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लेट अस टेक सिग्मा w कॉमन इनटू क्या क्या कॉमन है देखो, d स्क्वायर बाय 6 कॉमन है ना. d स्क्वायर बाय 6 कॉमन बचा क्या? यहाँ पे बचा m इंटू या फिर 2 टाइम्स m इंटू t प्लस b, बराबर है. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं मैं. देखो सिग्मा वुड इंटू b प्लस 2mt इंटू d स्क्वायर बाय 6 that is equal to resultant bending moment. Now let me write down once again. Now instead of ये पूरा जो लिखा है ना मैंने ब्रैकेट, ये ब्रैकेट को रिप्लेस करके कैन आई राइट b डैश इंटू d स्क्वायर बाय 6. Now see here what ये छोटे से डेरिवेशन में मैंने क्या अचीव किया है. देखो मुझे क्या मिला? रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? इट इज सिग्मा वुड इंटू b डैश d स्क्वायर बाय 6. मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंटली फॉर स्टील
I can convert the entire section into a rectangle. See here, ये फॉर्मूला किसका है? BD square by 6. देखो ना यहाँ पे भी BD square by 6 ही आया था ना. ये Z का फॉर्मूला है, Z का फॉर्मूला. वेयर अगर रेक्टेंगल का साइड और रेक्टेंगल है एंड उसका ब्रेड्थ B है एंड डेप्थ D है, तो उसका जो सेक्शन मॉडुलस आता है वो कितना आता है? BD square by 6. तो अभी यहाँ पे B डैश है. ये B डैश क्या है? तो B डैश है कि तुम इसका इक्विवेलेंट सेक्शन बनाओ जिसका ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और ब्रेड्थ कैसे चेंज होगा? जो ओरिजिनल ब्रेड्थ है उसमें हमें क्या ऐड करना है? उसमें ये दो किसके लिए है? बिकॉज दो स्टील प्लेट्स है. क्या ऐड करना है? हमें m times t ऐड करना है. मतलब what do you mean by it? So that means you can convert steel section into equivalent wood section by changing its dimension, which is parallel to neutral axis. Now see my statement. What is that? You can change steel section into equivalent wood या फिर wood section into equivalent steel by changing the dimension which is parallel to neutral axis, not it is perpendicular. Perpendicular वाला dimension change नहीं होता. कौन सा dimension change होगा? Parallel. You can see here t is parallel to neutral axis ना. Neutral axis को parallel dimension कौन सा? ये t वाला है. तो हमने t को change किया है, t को m से multiply किया है. तो अभी इसका equivalent wood section अगर बनाना है तो equivalent wood section कैसे हो जाएगा? ये जो t है उसको किससे multiply किया? m से. ठीक है, m से. Where m is your modular ratio. See here, modular ratio. अभी तुम्हें पता है कि स्टील है, स्ट्रांग होता है. स्टील को वुड में करोगे तो साइज बढ़ेगा कि कम होगा? स्टील के कंपैरिजन में वुड लेना है तो वुड ज्यादा साइज का लेना पड़ेगा ना, बिकॉज स्टील का स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू वुड. दैट मींस यू आर मल्टीप्लाइंग द मॉड्यूलर रेशियो. एंड और उल्टा कर रहे हो, अगर तुम वुड को स्टील में कन्वर्ट कर रहे हो तो यू विल डिवाइड बाय मॉड्यूलर रेशियो. व्हाई? बिकॉज वुड को अगर स्टील में कन्वर्ट करना है तो वुड के कंपैरिजन में स्टील का साइज हमेशा कम लगेगा बिकॉज उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है. So therefore, when you are converting into equivalent sections, you have to either multiply the dimension by modular ratio or divide the dimension. How you will going to decide कि whether to multiply, whether to decide कि which कैसे तुम convert कर रहे हो? You can solve this problem by converting wood into steel या फिर steel into wood. It is your choice. But convert करते हो कौन सा dimension change करोगे? जो dimensions parallel है neutral axis को, not perpendicular. See here how I am doing it now. तो अगर मुझे इसको इक्विवेलेंट वुड सेक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? ये जो स्टील सेक्शन मेरा दिया है ना उसको मैं चेंज करूंगा. अभी ये है मेरा स्टील सेक्शन एक साइड का, ये मेरा जो बीच का वुड था वो है ऑलरेडी, और ये वो दूसरे साइड का स्टील सेक्शन. सी है मैंने क्या किया? ये वुड सेक्शन जो था वो यूज किया. अभी मैंने ये स्टील को भी वुड में कन्वर्ट किया है, ये स्टील को भी वुड में कन्वर्ट किया सच दैट ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इट विल बी m times t. ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? m times. Why I have multiplied by m? Because I am converting stronger material to weaker material. I am converting stronger material to weaker material. Okay. Now this is what b breadth. ये सेम है. देखो यहाँ पे d चेंज हुआ क्या? जो डायमेंशन न्यूट्रल एक्सिस को परपेंडिकुलर है वो चेंज नहीं हुआ. Now this particular section will be called as equivalent wood section. ना इसका जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो सेम रहेगा एज सेक्शन. मतलब तुम अभी इसको कंसीडर करके सॉल्व मत करो. तुम एक पूरा रेक्टेंगल लो ये साइज का एंड यू सॉल्व फॉर वुड. अभी ये तो एक मटेरियल में आ गया प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम एक मटेरियल में आ गया तो कैसे सॉल्व करने का? यू नो इट बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट अर्लियर. जस्ट अ मिनट. नाउ but same thing if I want to convert into steel. Same thing if I want to convert entire beam into steel section. So what I'll do? I will change this B. ये मैं B को चेंज करूंगा. अभी अगर मुझे इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन ड्रॉ करना होगा तो मेरा स्टील सेक्शन ऐसा होगा. देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ये स्टील सेक्शन तो ऑलरेडी है मेरे पास. ठीक है, बीच का स्टील सेक्शन अभी कम हो जाएगा क्योंकि अभी वुड को स्टील में कन्वर्ट करूंगा तो ऑफकोर्स ये कम होने वाला है. राइट. ठीक है, इसका थिकनेस तो T ऑलरेडी है, इसका भी थिकनेस T ऑलरेडी है. ये जो थिकनेस है वो कितना हो जाएगा? B डिवाइडेड बाय m. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Why B divided by m? Now this is entire equivalent steel section. This is also D. ये D change नहीं होगा, perpendicular है वो. अभी this will be called as equivalent steel section. Understood? Have you understood how to convert double material into single material? Yes sir. Everybody, Yes, sir. क्या करना है? एक ही golden line मैंने बोला था वो याद रखने का. You have to change the dimension parallel to neutral axis. Change the dimension parallel to neutral axis. अभी change करते वक्त either you will multiply by modular ratio
or you will divide by modular ratio. How you will come to know whether you have to multiply by modular ratio or divide by? So when you are converting weaker material to stronger, of course size will reduce, you divide by modular ratio. When you are converting stronger material to weaker material, so of course the size will increase, you multiply by modular ratio. Simple thing, nothing too much worry about. अभी पता है कि स्टील को वुड में कन्वर्ट करूंगा तो वुड का साइज तो बढ़ेगा, तो why to divide? You have to multiply. And when you are converting wood to steel, of course steel reduce होता है साइज में because strength ज्यादा है, तो you will divide by m. That's why देखो b का जो width था wood का, उसको मैंने divide by m लिखा है यहाँ पे, see here. और यहाँ पे जो t था thickness इसका जो पैरेलल है, इसको मैंने क्या किया, multiply by m लिखा है. Have you understood now? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. rest of the part is same. We are going to use the same formulas and everything is same. But the confusion is how to convert. And then अभी हम लोग inertia किसका लेंगे? तो inertia ये equivalent section का लेंगे. Because इसका inertia लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है? Once you have converted, you can take inertia of that equivalent section. Okay? सर इस मेथड से ये रिस्ट्रिक्ट हो गया कि हमेशा सिमेट्रिक पे यूज होगा. नहीं कुछ नहीं है ऐसा. We are going to solve unsymmetric, symmetric सब problem solve करेंगे. We'll start with symmetric, then we'll go for unsymmetric. Okay? Getting it? Yes, ऐसा sir. कोई ये मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है. मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों साइड पे स्टील प्लेट होना चाहिए, एक ही साइड पे हो सकता है स्टील प्लेट. इट्स पॉसिबल एंड वी कैन सॉल्व दैट. नहीं सर, जो एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं ना, हाँ, लाइक जैसे हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मतलब काइंड ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. नॉट रिक्वायर्ड. नॉट रिक्वायर्ड. ओके. नो सिमेट्री. कुछ भी सिमेट्री कंपलसरी नहीं है. सिमेट्री है तो ठीक है, तुम्हारे लिए इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज यू विल हैव टू कैलकुलेट इनर्शिया इन अ डिफरेंट वे. मतलब क्या हो जाता है अभी जनरली एग्जाम में प्रॉब्लम्स व्हाट दे गिव, they do not give you every confusion in a single problem, otherwise that problem will not be for 10 marks. For example, मैंने अभी वो तुम्हें ये वाला पीछे वाला प्रॉब्लम दिया होता इसके लिए, ये प्रॉब्लम इसमें बोला सी है ब्रास का, सी सेक्शन है ब्रास का, आई सेक्शन है स्टील का. तो तुम्हें इनर्शिया पे भी काम करना है, फिर जाके तुमको उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इक्विवेलेंट. So that is going to be difficult, everything in a single problem, and such kind of problem I cannot ask in exam because the exam is a time bounded exam and with a particular number of the marks will be given. So that way but we can do it. It's not that it cannot be done, it can be done, but not in exam. Okay. Okay sir. So exam the problems are set according to taking into consideration how much time you will be having and how many marks are awarded for that. Based on that, the difficulty of the problem can be decided. Okay, so let's continue now. Okay, so let us go for at least one numerical based on the same thing, same part. What we are doing it right now. So see here what the question says. What the question says: a timber beam 150 mm wide and 200 mm deep is to be reinforced by bolting on two flitch beams or flitched. दो flitched उसको bolt कर रहे हैं. The flitched they have dimension 150 mm cross 12.5 mm and they are made up of steel. Steel flitched. Okay, on two steel flitched and the dimensions are given. Find the moment of resistance. The flitched are symmetrically at the top and bottom and the flitched are attached at the sides. मतलब दो केस में ये सॉल्व करना है हमें. ठीक है, तो बेसिकली दिस आर two problems. On this we'll solve first one at least and then we'll go for the second one. Now see here, flitch कौन सा दिया है, इसका डायमेंशन क्या है, flitch timber है. timber मतलब हमारा नॉर्मल वुड का पार्ट है ये. तो वुड का जो डायमेंशन है वो क्या है, 150 mm वाइड एंड 200 mm deep. So see here, let us take this as this is a timber. ये हमारा timber है. ठीक है, इसका width कितना है 150 mm and this is. इसके ऊपर हमें क्या करना है, we need to flitch the steel plates. स्टील प्लेट्स को फ्लिच कर रहा है, तो स्टील प्लेट्स में ड्रॉ करता हूँ. स्टील प्लेट्स का डायमेंशन है 150 mm वाइड एंड 12.5 mm इन थिकनेस. तो एक स्टील प्लेट यहाँ पे ऊपर ऐसे बिठाया, दिस इज वन स्टील प्लेट एंड दिस इज अदर. अभी इधर ही क्यों बैठाया हमने, तो यहाँ पे लिख के दिया है, देखो व्हाट दे हैव गिवन. रिटर्न है ना, पहला पार्ट क्या है, सिमेट्रिकली एट द टॉप एंड बॉटम. दूसरे पार्ट में साइड्स पे, तो वो बाजू दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम. पहला ये करते हैं. तो अभी ये क्या है, ये स्टील प्लेट्स है. ये डायमेंशन कितना है हमारा 150. Okay, how much is this? 200.
So this is 200. 12. This is 12.5 here, and this is also 12.5. 12.5. Okay. This yellow part is of steel. So let us. Okay. तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का 3 तरीका है. 3. एक तो तुम कोई चक्कर में मत पड़ो, इसको क्या कन्वर्ट नहीं करना है, हमको इंडिविजुअली सॉल्व करना है. एक स्टील है, ये वुड है. स्टील के लिए अलग सॉल्व करो, मोमेंट फाइंड करो. वुड के लिए अलग मोमेंट फाइंड करो. देन वुड का इनर्शिया अलग, स्टील का इनर्शिया अलग, फिर एक साथ फाइंड करो, फिर एंड में जाके मोमेंट्स ऐड करो एंड से दैट कि ये दोनों मिलके इतना मोमेंट रेजिस्ट करेंगे. बट थोड़ा लेंथी हो जाता है. तो अभी अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा में क्या है? कन्वर्ट करने का. कन्वर्ट में 2 टाइप है. आइदर यू कन्वर्ट एंटायर बीम इनटू स्टील और यू कन्वर्ट एंटायर बीम इनटू वुड. ओके, एंड एनी वन इज रिक्वायर्ड. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वैसे कोई मेंशन नहीं करेगा वो क्या तुम्हें करना है. एनीथिंग यू कैन डू. तो लेट्स स्टार्ट दैट कि हम लोग सिंपल करेंगे. हम लोग ये जो स्टील प्लेट्स गिवन है इनको वुड में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, मैं कौन सा मेथड ले रहा हूँ? स्टील को कन्वर्ट कर रहा हूँ वुड में. तो मैं इसका इक्विवेलेंट सेक्शन ड्रॉ करता हूँ. आई नो दैट कि सेंट्रॉइड इज गोइंग टू बी ओवर हियर. सेंट्रॉइड इधर ही रहने वाला बिकॉज ये सिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट. So let me draw the neutral axis. Now once I have drawn the neutral axis, now I am trying to convert steel into equivalent wood. So when I am trying to convert steel into wood, अभी देखो मुझे क्या कौन सा dimension change करना पड़ेगा? What we have learned in the last slide. Which dimension I should change? 12.5 या 150? 12.5. 12.5. No, 150. Parallel. I told you okay, the dimension which is parallel to neutral axis has to be changed. So which dimension is parallel to neutral axis? It's 150. 150. दिख रहा है ना? तो 150 को चेंज करना पड़ेगा. तो अभी मुझे 150 को कितना करना पड़ेगा? मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. See here in the problem they have mentioned the modular ratio. ये मॉड्यूलर रेशियो ही है ना? E for steel is 20. What is modular ratio? It is the stronger material upon weaker material ना? तो इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो 20 आएगा ना यहाँ पे. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा. मतलब सॉरी, ये ऐसा कुछ तो बनेगा, बराबर है. और ये जो उसका सेंट्रल पार्ट था वो तो है ही, ये वाला वुड तो ऑलरेडी था. समझा क्या? ये 2 प्लेट्स व्हाइट किसके वजह से आए? दिस इज इक्विवेलेंट वुड. नाउ दिस इज आल्सो वुड. ये सब क्या है? वुड का है अभी, इसलिए मैंने व्हाइट पार्ट में बनाया. बट इसका डायमेंशन कितना होगा? ये डायमेंशन कितना होगा? तो ये डायमेंशन होगा 150 मल्टीप्लाई बाय 20. इट विल बी 3000 mm. ओके, एंड ये कितना है? ये तो 150 रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं किया हमने. बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया, ओनली दिस डायमेंशन इज चेंज्ड. नाउ सेंट्रॉइड इज ओवर हियर. कैन यू फाइंड आउट द इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस? यस और नो? इनर्शिया फाइंड करते हैं. पहले वेब के लिए लिखते हैं. वेब के लिए क्या डायमेंशन है? वेब के लिए डायमेंशन है 150 मल्टीप्लाई बाय 200 क्यूब बाय 12. एंड नो नीड टू शिफ्ट बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट द सेंटर. ठीक है, प्लस 2 टाइम्स. क्यों 2 टाइम्स? बिकॉज वेब के लिए लिख रहा हूँ. 2 टाइम्स किसका? ये जो फ्लांज है, सॉरी फ्लांज, ये फ्लांज का डायमेंशन क्या है? 3000. नाउ द न्यू डायमेंशन आई एम कंसीडरिंग. तो 3000 मल्टीप्लाई बाय ये किसको परपेंडिकुलर रहेगा? देखो इसका ये जो है ना 12.5 पे है, तो उसका सेंट्रॉइड इधर है, बराबर. तो पहले मैं लिखता हूँ 3000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12. ये हो गया कहाँ पे? उसके सेंट्रॉइड पे, इधर. मुझे यहाँ से यहाँ पे नीचे शिफ्ट करना है. तो कैसे करेंगे हम लोग? ये 100 और 12.5 का आधा होता है 6.25. 100 and 6.25, 106.25. So therefore I will shift it. शिफ्ट करने से पहले मल्टीप्लाई बाय एरिया 150 नहीं, मल्टीप्लाई बाय एरिया which is 3000 मल्टीप्लाई बाय 12.5. This is your area into 106.25. 6.25. Have you understood this? 106.25 कहाँ से आया? सर लेकिन जब हम इक्विवेलेंट वुड में कन्वर्ट करते हैं तभी हम द मॉड्यूलर रेशियो इनटू थिकनेस करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे 150 कैसे लिया? इसके लिए मेरा गोल्डन लाइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्या बोला था मैंने? गोल्डन लाइन. विच डायमेंशन यू हैव टू चेंज? द डायमेंशन विच इज पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस. डोंट थिंक अबाउट वेदर इट इज टी बी ए बी सी डी. लेना देना ही नहीं अपना. हमारा एक ही स्टेटमेंट कान में बैठा है कि भाई जो डायमेंशन न्यूट्रल एक्सिस को पैरेलल है उसको चेंज करो.
फिर चाहे तुम स्टील को कन्वर्ट करो, वुड को करो, प्लास्टिक विस्टिक जो भी है, लाइन कांस्टेंट है अपना। तो कौन सा डायमेंशन पैरेलल है इधर? 150, इसलिए मैंने 150। हाँ 150। हाँ, इसके लिए 12.5 को हाथ ही नहीं लगाने का, वो परपेंडिकुलर है। जब मैं y एक्सिस पे जाऊंगा तो जाके देखूंगा उसको क्या करेंगे। अभी तो y एक्सिस पे बेंडिंग नहीं देख रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग देख रहा हूँ। दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू 12.5। ओके, या सो नाउ गिव मी द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? बताओ भाई जल्दी। (18.56 into 10 raised to 7). 18.56 into 10 raised to 7. Okay, 18.56 into 10 raised to 7। ठीक है, mm raised to 4 बराबर है। तो यू गॉट द इनर्शिया नाउ, हमें इनर्शिया भी मिल गया। हाँ, अभी क्या करना पड़ता है हमें? कैलकुलेट क्या करना है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो डू यू नो, अभी ये दोनों के लिए तो सेम ही टाइप का स्ट्रेसेस आने वाला है। तो वी नो द y वाला डिस्टेंस कितना है, y मैक्सिमम कितना आएगा? वी नो इट इज 200 का आधा होता है 100, 100 प्लस 12.5 विल बी हाउ मच? हाउ मच? 112.5. हाँ 112.5। सॉरी, इधर अंदर लिखता हूँ थोड़ा, ओके, बाजू का जगह हमें चाहिए। सो y मैक्सिमम इज 112.5। ओके, हाँ, सो डू you know the y maximum, you know I, and what you know is the maximum allowable stress in the timber। टिम्बर में कितना अलाउबल स्ट्रेस है? 6 न्यूटन पर एमपीए का, बराबर ना? तो अगर टिम्बर में उतना स्ट्रेस है 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का, तो हमें क्या करना है अभी? ये मोमेंट फाइंड करना है, बराबर। तो हाउ विल यू फाइंड आउट देन? m इक्वल टू, कैसे करोगे? m इज इक्वल टू सिग्मा बाय y इंटू आई, बराबर है। m is equal to sigma by y into I. So can you calculate? Just a minute. Yes or no? Sigma by y into I. Yes, किसी का आंसर आया? ये इनर्शिया का वैल्यू आई एम गेटिंग समथिंग, मेरे पास जो सॉल्यूशन इनर्शिया करेक्ट है क्या? ये 18.56 नहीं सर 94.76 आ रहा है। हाँ, बिकॉज व्हाट आर द कैलकुलेशन व्हिच आई हैव डन, उसमें थोड़ा सा अलग है। किया क्या? वापस चेक किए कितना है? हाँ सर 94.76 है। हाँ वही, मुझे भी अलग आया था। 94.76 into 10 raised to 7 sir। हाँ 94.76 into 10 raised 10 to to 7। 7, yeah, हाँ now सर। it is correct। हाँ, now see here, ये फॉर्मूला तो है मेरे पास, सिग्मा है, y है, I है, बट इसमें प्रॉब्लम है। ये सब में, अरे ये लोग भी, हाँ बोलो। तो उसी मेल पे, उस पे अभी 3 बज गया ना, 3 बजे तुम्हारा इसका जूम लिंक भी आएगा, वही असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट आएगा वहाँ पे।
जूम लिंक है उसमें, नाउ राइट नाउ आई एम इन अ लेक्चर, इसके बाद मैं वो जूम लिंक ज्वाइन करूंगा, ठीक है। ओके, सो सिग्मा बाय वाई इंटू आई। नाउ सी हियर, बट प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो बोला है यहाँ पे अलाउबल स्ट्रेस इन टिम्बर, टिम्बर का अलाउबल स्ट्रेस कितना है 6 MPa, बट ये टिम्बर किधर तक है, टिम्बर खाली यही डिस्टेंस पे, कैन यू सी, ये जो टिम्बर का मैक्सिमम स्ट्रेस है सिग्मा 6 MPa, वो कितने डिस्टेंस पे है, y इक्वल टू 100 डिस्टेंस पे, एंड राइट नाउ मैंने जो इक्विवेलेंट सेक्शन ड्रॉ किया उसमें y मैक्सिमम कितना है, कितना है, अरे 112.5 है ना, यस और नो, Yes, 112.5. हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, यस और नो। हाँ, yes. सो दैट मीन्स अगर तुम्हें इक्विवेलेंट सेक्शन सॉल्व करना है, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट सेक्शन सॉल्व करना है तो ये ऐसा लेके नहीं चलेगा कि, ठीक है, ये सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम है क्या अभी 6, वो तो ये पोजीशन पे था, मुझे 112 के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या रहेगा वो फाइंड करना पड़ेगा, एंड देन आई कैन यूज दैट वैल्यू एंड देन आई कैन सॉल्व द सम फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल मोमेंट, getting my point? So that means what I need to write down here is here, ठीक है, the sigma in wood is given as 6 MPa, but this is at a distance of y equal to 100, right? but हमें जो अभी sigma wood maximum का वैल्यू चाहिए वो कितना रहेगा, let us take this is a question mark, and but that y value is 112.5 mm, बट हमें पता होता है कि सिग्मा बाय वाई एक कांस्टेंट है, देखो सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई, एम एंड आई आर गोइंग टू रिमेन सेम बिकॉज ये पूरा सेक्शन आई सेक्शन एक ही इनर्शिया आता है, सो दैट मींस आई कैन राइट डाउन सिग्मा वुड मैक्सिमम अपॉन सिग्मा वुड इज इक्वल टू वाई, वाई किसके लिए था मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम मतलब 112.5 के लिए, और ये सिग्मा वुड का वैल्यू कितना, कितने डिस्टेंस पे 100 पे, दैट मींस यू आर कैलकुलेटिंग द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वुड which is given as 6 MPa. अरे अंडरस्टैंडिंग, तुम रैंडमली वैल्यू नहीं ले सकते 6 MPa, बिकॉज 6 MPa तुम्हारा 100 mm पे है, एक्चुअल में ये हमारा बीम है क्या, दिस इज एन इक्विवेलेंट बीम, हमारा बीम इधर है, ये इधर वाले बीम पे वुड यहाँ पे है, एंड नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, so that means I want the corresponding value there which is at a distance of 112.5 not 100, so that is why I need this relation, ये सिमेट्रिकल रिलेशन है, मतलब वो तुम नॉर्मल करते थे ना हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो अगर अरे वो सिंपल व्हाट वी कॉल इट एज मैथमेटिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आइदर वी कॉल इंटरपोलेशन इन लैंग्वेज, अच्छा सेम प्रोपोर्शन, या फिर वो 2 रुपए का 2 पे रूट 4 रुपए का कितना, वैसे वाला समझा ना अभी, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर, हाँ तो अभी वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन बेसिकली, or it is a linear interpolation. Why linear interpolation we are doing it? Because the bending stress varies linearly. देखो हमारा ग्राफ जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन आता है, मतलब कंप्रेशन से टेंशन तक स्ट्रेट लाइन आता है ना, पासिंग थ्रू जीरो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, सो इट्स अ लीनियर इंटरपोलेशन, इन टेक्निकल वर्ड्स वी कॉल इट एज लीनियर इंटरपोलेशन, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैथमेटिक्स में तुमने बहुत कुछ बोला रहेगा अभी, आई डोंट नो एक्जैक्टली, बट स्टिल वी कॉल इट एज दिस वे, और इट इज सिमिलर ट्रायंगल्स, सो वी गॉट दिस एज, एंड इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 6.75. 6.75. So this is your maximum value, and then you will take the equivalent bending moment is equal to this 6.75 upon y is 112.5 into I. I का वैल्यू कितना है तुम्हारा 94.76 into 10⁻⁷. समझा? अगर तुमने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, तुमने अगर यहाँ पे 6 और 100 लिया हो तो भी चलता, बिकॉज वो रेशो सेम ही है, अगर तुमने ये इसको 6 लिया बट लेकिन y को तुम 112 नहीं ले सकते, फिर तुमने 6 लिया तो तुम्हें 100 लेना पड़ेगा, बिकॉज वो पोजीशन उसका 100 पे, ओके, एंड दिस विल गिव मी द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। यही सेम चीज हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, हाउ, बाय कन्वर्टिंग द वुड इनटू स्टील, अगर वुड को स्टील में कन्वर्ट किया तो अलग हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी हियर वी गॉट दैट कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, नाउ सी हियर मैं एक अभी ग्राफ बनाता हूँ, इससे तुम्हें सब आंसर्स मिल जाएंगे, देखो ये वैल्यू कितना है,
ठीक है, अगर इसको प्लॉट करके लाया तो ये वैल्यू कितना है 6 है कि नहीं, बराबर ना? हाँ। बराबर, यहाँ पे भी ये वैल्यू कितना रहेगा 6 और ये वैल्यू कितना रहेगा 6.75. yeah. But now can you calculate the value of maximum value in steel? Can you calculate the maximum value in steel? ये तो इक्विवेलेंट सेक्शन का है ना, एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअल में स्टील प्लेट अलग है और वुड प्लेट अलग है। तो अभी देखो मैं एक्चुअल डायग्राम कैसे ड्रॉ करता हूँ। सी है, कुछ ज्यादा काम नहीं, बड़ा डिफिकल्टी नहीं है ये, खाली पहली बार करोगे तो तुम्हें ऐसे डिफिकल्ट लगेगा, जैसे तुम्हें लगा था एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करते वक्त थोड़ा डिफिकल्ट, बाद में तो ये सब ओरली होता है। Now see here, let me draw it with yellow color for this one. पहले तो प्रोफाइल बना के लेता हूँ। ये मेरा ओरिजिन लाइन है। ओके, नाउ मुझे पता है कि स्टील में सॉरी वुड में मैक्सिमम सिग्मा के यहाँ पे आता है, वुड ये वाला वुडन रीजन है, तो वुड में मैक्सिमम आने वाला है 6 और इधर मिनिमम आने वाला है 6। तो ये हो गया, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ बनाया मैंने ये वुड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो वुड रिप्रेजेंट करता है। बट ऊपर स्टील है, तो स्टील के लिए अगर मैं येलो ग्राफ से बनाना चाहता हूँ तो देखो स्टील का अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना था 6.75, बट ये वैल्यू किसका है, इक्विवेलेंट वुड सेक्शन का है। अगर मुझे स्टील में कन्वर्ट करना रहेगा तो आई नो दैट कि द स्ट्रेन इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। व्हाट इज माय मॉड्यूलर रेशो? तो अगर तुम्हें पता है तो मॉड्यूलर रेशो को हमने ऐसे लिखा था, ई सिग्मा फॉर स्टील विल बी मॉड्यूलर रेशो टाइम्स सिग्मा फॉर वुड, बिकॉज वुड इज वीकर मटेरियल, राइट ना, वुड इज वीकर मटेरियल। तो अगर मुझे स्टील में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलर रेशो जो 20 है उसको मल्टीप्लाई करके वुड का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, वुड का मैक्सिमम वैल्यू है 6.75 which we have calculated based on the conversion, ये जो इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। अगर इसको मल्टीप्लाई किया 6.75 जरा करो कितना आता है, 13.5. 30 नहीं रे 113 आएगा, 113. नहीं पता नहीं 6 है ना, हाँ तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, हाँ सर, 135 आएगा, बराबर ना, 135 है। हाँ सर 135। मुझे पता नहीं है, तुम लोग बताओ 135। ओके 135। तो अभी देखो ये क्या येलो किसने किया, ये सॉरी पेन नॉट हैंड, वेट या हाँ यहाँ पे देखो, तो अभी मेरा वैल्यू कितने का आया 135 MPa। तो स्टील में मैक्सिमम वैल्यू कितना है 135 MPa का है, बराबर। देखो मैं अभी स्टील के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज फॉर स्टील आई एम सॉल्विंग। स्टील का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 135, और स्टील में मिनिमम वैल्यू कितने का आएगा, स्टील का देखो स्टील का मिनिमम लोकेशन यहाँ पे है। तो मुझे बताओ ये जो 135 का वैल्यू है स्टील का 135 MPa जो वैल्यू है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो न्यूट्रल एक्सिस से 112.5 डिस्टेंस पे है। बट मुझे स्टील का मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, वो कितने डिस्टेंस पे होगा 100 डिस्टेंस पे होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, 100 क्यों, बिकॉज स्टील का लोकेशन देखो किधर है, स्टील का लोकेशन इधर है ना, स्टील इधर खत्म हो गया, उसके नीचे वुड है। तो अगर मुझे स्टील का ये वाला वैल्यू चाहिए सिग्मा स्टील जो मैक्सिमम नहीं है, जो मिनिमम वैल्यू है, तो सिग्मा स्टील ठीक है इज इक्वल टू क्या अपॉन सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू 100 अपॉन 112.5, द सेम वे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सिग्मा स्टील इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 112.5 इनटू मैक्सिमम वैल्यू था 135। सॉल्व दिस, हाउ मच इट इज दिस, जस्ट गिव मी द वैल्यू 120। तो इसका मतलब समझा गया तुम्हें, स्टील इधर है जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 135 और उसका मिनिमम वैल्यू कितना है 120। तो ये जो येलो वाला पार्ट बना है ना, ये क्या है, ये है बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन किसका, स्टील का। और सिमिलरली इधर भी आएगा, वो एक आएगा 135 और एक आएगा 120। अभी मैंने बहुत ही क्लोज बनाया है, एक्चुअली ये 6 है और ये 120 है, तो दोनों में बहुत ज्यादा गैप रहेगा, समझा, लेकिन मैं अभी प्रोपोर्शनेट बना रहा हूँ इसलिए ऐसे बनाया। दिस इज योर एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंसीडरिंग बोथ द मटेरियल्स टुगेदर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ड्रॉन। ये जो ड्रॉ किया है वो इक्विवेलेंट वुड सेक्शन का है,
Are you understanding my point? Yes, sir. थोड़ा difficult हुआ रहेगा. Yes, sir. Okay, ठीक है, but इतना थोड़ा सा difficulty चलेगा. What I can do here is I'll have to stop here. So we are going to solve this. Of course, many more numericals we need to solve based on Fletch beam. But okay, wait a minute.